Hi everyone. Today is 11th May. शाम के बज रहे हैं 5 और I'm in my room. I took a office leave today because I was not feeling well physically and a little mentally also. Part of it was कि over the weekend I had some stuff to do and I was too tired of it, and I went out for some other works and I was tired physically. So, combining all those, I took kind of a rest day today. And I had some work to do, but I didn't because I was too much in my head today. And I have been in my head today all day, even if I've been in my room. And तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसे कि मे बी यू आर नॉट फिट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, शायद इसलिए कि मे बी यू आर एन इंट्रोवर्ट और मे बी you are just different than the others and you are just in your head too much. You are just dealing with life in a different way than most of the people, and शायद से you cannot do it. That is what I thought, and that is what I think of me. So there are some updates that have been missing, but the thing is, I did my job switch recently, one and a half month back, and the reason I left my first organization was कि it has been too long that I've stayed in the company. It was kind of becoming my comfort zone. There was office politics involved, but it was never within my team, or at least I never felt it within my team. There was politics involved in the larger team, but not in my team, like the DevOps profile I am in. And then I did the job switch, knowing that things would not be the same, things would be different, I'll have to fit in, and I'll have to kind of deal with new people in a different way. I'll have to kind of uh, put a piece of me in the puzzle and fit it according to the company's need and all those things. I knew it, I know this. Right now, I'm in probation period in the new company, but it's kind of like क्योंकि मैंने स्विच कर लिया है एंड आई नो कि ऑब्वियसली तुम्हारा मैनेजर चेंज होगा, टीम चेंज होगा, कंपनी का काम करने का तरीका चेंज होगा, एवरीथिंग विल चेंज, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा. मैं एक तरीके से काम कर रही थी पिछले 3.5-4 साल से. आई हैव टू चेंज माई वे ऑफ वर्किंग, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आई हैव टू चेंज द वे आई डील विद पीपल. मतलब वो तो मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी में भी चेंज नहीं करा, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम एंड दैट इज हाउ इट वर्कड फॉर मी. क्योंकि व्हेन यू आर इन एनी न्यू कंपनी और इन अ न्यू एनवायरनमेंट, you have to show yourself, you have to put your best foot forward, you always have to kind of be one step or two steps ahead of everyone कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ताकि तुम पे कोई क्वेश्चन ना करे, विच इज़ अ वैलिड रीज़न, विच इज़ अ वैलिड थिंग, जो कि मेरे को अभी तक कभी करना नहीं पड़ा being in the last organization I was, because in that company I started from scratch. I worked my way in the way the team wanted, and उसमें चल जाता था वो काम कि हाँ, we are giving our work updates, but at the same time it is not like you will be questioned कि in a very bad way कि तुमने क्यों नहीं करा या क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, even if you were on a sick leave. मतलब obviously the manager that I had, even if there was some critical work and due to any emergency I had to be on leave for few days, he would not be like taking updates कि अच्छा ठीक है, you are on sick leave, it's fine, but give me the update of this task. This never ever used to happen, had happened to me, or I don't think this will happen if the team you have or the manager you have is good. But I guess it may happen in this company. मतलब it is just that feeling कि मतलब I deviated from my topic, but the thing is, uh, from the moment I stepped my foot in the corporate, I knew it in my heart that corporate is not for me.
and it is that feeling कि corporate में you are just working on something that someone else wanted to build, and that someone else wanted to have in the world, be it any software, any hardware, any tool, or any service, or anything. It is someone else's idea. You are just kind of a slave that everyone think corporates are, and you are just doing the tasks accordingly. And I guess corporate is the only place जहाँ पे तुमसे पूछा जाता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं करा, या फिर ये काम का क्या स्टेटस है, ये इसकी डेडलाइन है, इन अ वेरी बैड एंड डिमीनिंग वे इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. इफ तुम्हारा बाकी कोई भी काम है, इट इज़ अप टू योर कंट्रोल. अगर तुम कुछ खुद का भी चला रहे हो, और बी इट यू आर इन एनी अदर field, obviously let's say you are a doctor, you are a lawyer, you will have a certain set of things to do, but they would be most of the time one at a time. It would be up to you कि हाँ तुमने उनको कैसे डील करना है, but इसमें the other member will decide for you कि what you have to do in what order. You don't have any ownership of any kind कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है. ये तुम पे बोल दिया जाता है कि ये काम तुम्हें करना है, और इतने बजे तक करना है, और इसी तरीके से करना है, एंड यू कांट क्वेश्चन मच कि I think this can be done in this way. In most of the cases, it won't be accepted. I can see my dark circles now. हाँ, तो initially I always thought कि I think that I am not fit for corporate because I am that way. I am introvert. मैंने तो कभी ऑफिस में ऐसे किसी बंदे को डील करते हुए नहीं देखा है जो कि गॉसिप कम करता हो, या फिर जो ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, या फिर जो शांत ना बैठता हो. सारे बंदे बात कर रहे होते हैं इन द लंच ब्रेक दैट वी हैव, और एवरी पर्सन दैट हैज, एंड आई एम द वन थिंकिंग कि अरे इतनी बातें क्यों कर रहे हो, लंच ब्रेक है, शांति करो, दिमाग को शांत रखो, एंड दैट होल फ्लो. बट टू थिंक ऑफ इट कि द पीपल आर लाइक me are the ones who will not be seen out in the public. We are the ones that will be hiding somewhere. We are the ones that would be sitting alone somewhere. So people will not notice. No one notices me. I have never noticed someone like me in my office, in previous and in the current company that I am. क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो कि लोगों से ज़्यादा बेयर मिनिमम इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं हम लोग. और वो बेयर मिनिमम इंटरेक्शन अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो नॉर्मली दिखेंगे ही नहीं. दैट मीन्स वो मेरे को भी नहीं दिखेंगे. एक इंट्रोवर्ट को दूसरा इंट्रोवर्ट, या फिर एक बंदा जो कि कंपैरेटिवली इज़ वेरी बैड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको दूसरा बंदा विच इज़ इक्वली बैड इन कम्युनिकेशन स्किल्स दिखेगा ही नहीं. तो मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि यार मैं ही हूँ जो कॉर्पोरेट में ऐसा बिहेव कर रही हूँ, बाकी सारे लोग तो डील कर लेते हैं, बाकी सारे लोग काम कर लेते हैं. काम मैं भी कर लेती हूँ. आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन वर्किंग इन द टेक स्टैक दैट आई एम वर्किंग विद. It's just that I don't have the mental capacity to deal with people the way corporate would require me to deal with people. और उसका भी यही रीज़न, अब इसका भी वही है कि मेरी मेंटल एनर्जी लोगों से डील करने में ही चली जाती है. एंड आई एम लाइक अरे यार क्या काम करूँ मैं जब मेरे से लोगों से डील ही नहीं हो रहा है. इवन इफ आई हैव रियली गुड माइंड ऑफ माई ओन, मतलब वही है. इट इज़ जस्ट दैट आई हैव थॉट, और मेरे दिमाग में ये भी आता है कि क्या कर लोगे तुम कॉर्पोरेट का काम करके इन द लॉन्गर रन. इन जनरल ह्यूमन्स आए फॉर अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. बेयर मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. अभी भी हम जितनी मर्जी अपना घिस लें, अपने
काम घिस लें और सब कुछ कर लें, एक पूरा 24/7 हम काम कर लें, काम का देयर इज़ नो रेलेवेंस अगर हमारे पास एक कंफर्ट प्लेस नहीं है रहने को, अगर हम अपने माइंड को डिटॉक्स या फिर अपने माइंड को शांत नहीं कर सकते हैं, अगर हम अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं, अगर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं दैट मेक्स अस हैप्पी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घूमना फिरना, कहीं बी इट अपने बेड पे 2-4 घंटे बैठे रहना, अगर उससे मेंटल शांति मिलती है, या चलो कुछ देर को वो करता है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक बंदा कॉरपोरेट में काम करने इसलिए जाता है ताकि जो उसको रेस्ट करने वाली चीज़ें हैं या जो उसकी हॉबीज़ हैं, सॉरी, वो अच्छे से परस्यू कर सके, अपने लिए टाइम निकाल सके। और ये चीज़ कि अगर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जो कि आजकल की टर्म है टाइम वेस्ट करना खाली बैठ के, तो उसे टाइम वेस्ट करते टाइम गिल्ट ना हो ऑफ एनी फाइनेंस और ऑफ एनी मनी थिंग, उसके दिमाग में पैसे ना चले, अगर वो छुट्टी लेना चाह रहा है, हफ्ते के लिए वेकेशन पे जाना चाह रहा है, तो वो जा सके। दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट। तो व्हाट आई हैव ऑलवेज बिन थिंकिंग इज टू हैव अ स्किल सेट ऑफ योर सेल्फ, जिसमें तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आजकल के यूट्यूब के ज़माने में यू कैन काइंड ऑफ एडवर्टाइज दैट स्किल ऑफ योर्स, you can teach it to the wider audience over YouTube, और if let's say you think कि आज मैंने ये सीखना है, आज मैंने ये सीखना है, आज मैंने ये सीखना है, and you kind of document your journey, people will like, अच्छा this is a multi talented person, क्योंकि कॉर्पोरेट में जो तुम टेक स्टैक सीख रहे हो अपना AI के थ्रू और जो भी इन ऑल ऑफ योर सिस्टम्स, उसका मेरे को पर्सनली, मैं उससे अटैच होके आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट और एनी रेलेवेंस ऑफ दैट। मेरे को है कि अगर मैं घर में बैठी हूँ, आई शुड नो कि घर में काम चलाने वाले जो भी स्किल्स होते हैं, बी इट जो फेमिनिन स्किल्स बोले जाते हैं, खाना, बी इट क्रोशे, बी इट स्यूइंग, बी इट एनी टाइप ऑफ, मेरे को डांस का शौक है, वो अलग बात है, करा नहीं है मैंने डांस, कोई ना कोई खेलने की हॉबी हो गई, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, कुछ भी हो गया, एनीथिंग दैट मेक्स यू क्लोजर टू यू। मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को वही चीज़ें करनी है एंड आई वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। दिस इज़ वॉट आई हैव इन माई माइंड। और अब मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो मेरे पे लानत हो जाएगी, बट हाँ, दिस इज़ वॉट आई हैव इन माई माइंड। तो अभी के लिए इट इज़ जस्ट मेरे को जॉब करनी है, बट मेरे को जॉब उस तरीके से करनी है कि मैं जॉब करती रहूँ, बट उसके साथ साथ मेरे को दिन में टाइम हो, मेरे पे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, कि मैं एटलीस्ट जिन चीज़ों से अभी मेरे को पैसे नहीं मैं कमा पाऊँगी एज ऑफ टुडे, एटलीस्ट उनको सीख तो लूँ कि कल को जब करना है तो आई हैव द स्किल ऑफ इट, मेरे को उस टाइम पे ना सीखना पड़े। जॉब छोड़ने से पहले आई हैव द स्किल सेट दैट आई वांट टू बी यूजिंग फॉर माई मनी, और उससे मैं करूँगी। मतलब बट अभी अगर मेरे को कॉर्पोरेट में रहते हुए भी मेरे को इतना मत्था कमाई करनी पड़ेगी, वो जो कि सारे लोग करते हैं, बट अगर मैं ये मत्था कमाई करती हूँ, मेरी मेंटल वो हिल जाती है, एंड देन आई एम नॉट इन द स्पेस टू बी प्रोडक्टिव इन माई क्रिएटिव हॉबीज दैट आई हैव। मेरी एक आदत है, जैसे ही मेरे को छुट्टियाँ मिलती हैं गर्मियों की सर्दियों की, स्कूल में हमेशा होता था मेरे पास जो मेरी अपना आर्ट की कलेक्शन होती थी, पोस्टर कलर्स, वाटर कलर्स, शीट्स हो गई, वाटर कलर शीट्स हो गई, ब्रशेज हो गए, वो मेरे बाहर आ जाते थे, एंड आई यूज टू ड्रॉ कार्टून्स, आई यूज टू पेंट सीनरीज, चाहे घटिया से घटिया होती थी, बट मेरे लिए इट इज़ गुड। मतलब आई एम नॉट एन आर्टिस्ट वाला पेंटर स्कूल में, कभी स्कूल में मेरी तारीफ नहीं करी गई है पेंटिंग की, बट आई एम गुड एट decently good at copying things from YouTube tutorials and I like doing that. अभी भी अगर मैं रूम पे मेरे पे सामान होता, I would have done that अपना ठीक करने के लिए। आज मेरे को ऑफिस का काम करना था होपफुली, बट वो अभी तक मैंने नहीं करा है। I would be staying up in the night। मतलब वही है कि this is what I have in my mind, कि this is what I want my 30s to be, बट
अभी क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट में आई एम फीलिंग दैट प्रेशर ऑफ डीलिंग विद पीपल, आई हैव दिस प्रेशर ऑफ कि लोगों से मेरे को ऐसे ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा टू गो थ्रू माई डे, नहीं तो मेरे ऊपर ही क्वेश्चन करा जाएगा कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल इन माई ऑफिस एंड आई हैव टू गिव सर्टेन आउटपुट्स रिलेटेड टू माई टास्क। तो मैं उसकी चिंता में अगर चली जाऊंगी, जो कि मेरे को चिंता लेनी है, मैं ले रही हूँ, but I have to keep the longer picture reminded in my head, kind of as a photograph memory, कि अभी ये हो रहा है, it's fine, you just do a little job switches and then drop from the corporate world and उसके बीच में have time for yourself, क्योंकि अभी मेरे को अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं कॉर्पोरेट में ही रही एंड आई डू नॉट हैव फ्यू आवर्स ऑफ माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, तो मैं सीखूंगी नहीं, तो मैं छोड़ूंगी कैसे कॉर्पोरेट, पॉइंट टू बी नोटेड। So this is the longer picture that I wanted to have in my head and because of that I'm speaking it here। और ये है कि ये चीज़ भी मेरे को बार बार रिमाइंड करनी पड़ती है कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं, जिनको वही इंट्रोवर्ट कह लो, आई आई एम एन इंट्रोवर्ट बट आई ऑल्सो स्पीक वे टू मच। जो मेरे जैसे लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट कह लो, जो लोगों से ज़्यादा डील करना नहीं चाहते हैं, जो जिनके पास बात करने का टॉपिक नहीं होता है, कि भाई इफ़ मेरे को किसी ग्रुप ऑफ दोस्तों के साथ बिठा दिया जाएगा, आज के टाइम पे मेरे पास अपनी ज़िंदगी के बारे में अपडेट्स देने को कुछ है ही नहीं। पहले मैं थी, अच्छा ये हुआ वो हुआ ये हुआ, बट अब मेरे पास आई डोंट फील इट इज़ दैट रेलिवेंट कि मैं लोगों को अपने बारे में बताऊं, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं बताती ही नहीं, मैं बोलती ही नहीं हूँ। अब यही है, अगर कोई मेरे जैसा बंदा है वो मेरे को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही किसी को नहीं दिखती अगर, तो उस चक्कर में आई हैव टू फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि पीपल लाइक मी एग्जिस्ट। आई हैव बम्ड इनटू पीपल लाइक मी, बट बहुत ही रेयर। और क्योंकि मेरे को पता है कि यार यार ये भी ऐसा है, तो मैं उनको परेशान नहीं करती, वो मेरे को परेशान नहीं करते हैं, वी नो कि वी जस्ट एग्जिस्ट। तो आई हैव टू कीप इट इन माई हेड कि दुनिया में ऊपर ऊपर सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, जो बातें करने में बहुत अच्छे हैं, बातूनी हैं, लोगों की टांग खींचने में और अपनी टांग खिंचवाने में बहुत तेज़ हैं, बट मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, तो मैं उसमें फिट इन नहीं हो रही हूँ। बट दैट डज नॉट मीन आई डोंट हैव अदर प्लेस टू फिट इन, आई हैव प्लेसेस टू फिट इन, आई हैव जस्ट नॉट फाउंड देम येट। बस यही बोलना था। बाय।